बैठिए। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? अच्छा हूँ। बधाई। थैंक यू मैम। इंटरव्यू कॉल हुआ है। थैंक यू मैम। अपना परिचय दीजिए। मैम मैं इंग्लिश में देना चाहूँ। हाँ, इंग्लिश में दीजिए। My name is Nikhil Kumar and I am from Palamu, Daltonganj. I have done my schooling from Bishop School, Ranchi. After that, I have done my mechanical engineering from Bhopal, RGPV. And after that, I am doing UPSC Civil Services. I have given my mains in 2019 and 2022. And my hobbies are watching science-based movies and playing chess. आप पलामू से बिलोंग करते हैं? Yes, ma'am. क्या क्या पलामू के बारे में कुछ बताएंगे जिससे लोग वहाँ अट्रैक्ट हो जाए? Ma'am, Palamu has a very diverse and beautiful cultures. It has a very historical place called Palamu Kila and a very beautiful national park which is known as Betla National Park. बस दो ही। And ma'am, Palamu is a sangam and mixture of Awadhi and combination of Jharkhand tribal peoples like Chero. We celebrate Karma festival apart with festival of Chhat also there. So it attracts a lot of, and new tourist site is also opening there, ma'am, in like Latehar sub-skirts of Palamu, like Mahua Dal and all. Netarhat is there, so we can visit there. And और प्रॉब्लम्स क्या है पलामू में? मैम पलामू में मैक्सिमम जो समस्या है इट्स मेनली मैम इट इज़ रेन फेड एरिया मैम. सो द agriculture production is very less, and the second problem is ma'am the unemployment issue. Thirdly ma'am, the issues of women mostly related to like malnutrition, anemic and child marriages. तो आपने कहा कि जो महिलाओं में है एनीमिक है, माल न्यूट्रिशन है। Yes ma'am. तो इसका रीज़न क्या मानते हैं? क्या रीज़न है माल न्यूट्रिशन है, एनीमिक का? Ma'am, prevalence of child marriage in women is there ma'am, and if the women will get early married, she will give unhealthy child. And second is the prevalence of undernutrition like wasting, stunting and are there. And thirdly ma'am, they have lack of attention about how to feed the child in a proper time manner. And fourthly ma'am, connectivity issues ma'am. In the part of hinterland, they don't get a proper vaccination and they don't know about the like first milk, about like colostrum. They don't know the issues about how to feed the child. So these are the issues. तो ये जो अर्ली मैरिज जो बच्चियों में होती है, महिलाओं में होती है, जी मैम, उसको रोकने के लिए झारखंड गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च की है? मैम right now I am not able to recall, but there is a Child Marriage Act, Prevention of Child Marriage Act 2006 is there ma'am. We have to check that no child should left alone or from their dreams, and no child मतलब we have to see that no child gets marriage before 18 year of age. अच्छा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा स्कीम है। Yes, क्या एम के साथ इसको स्टार्ट किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? Ma'am, to improve the child sex ratio. चाइल्ड सेक्स रेशियो और कुछ? And to impart the quality education to our girl child who are from 14 to 18 year of age. हमारी गर्ल चाइल्ड को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट कौन सा स्कीम चलाई है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इज देयर मैम. वो तो 18 साल होंगी तब, उसके पहले भी कुछ है? हाँ, सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना इज देयर मैम. क्या उसका ये है, एम क्या है उसका, क्या सारा क्राइटेरिया है? मैम 6,000 मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, बट 6,000
मंथली 20,000 रुपीज़ उसको पूरा 8 to 12 का एजुकेशन कंप्लीट करने में मिलता है। आफ्टर हाँ, 12 उनको फिर 20,000 मिलता है। वो तो पैसे का एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, बट इस स्कीम को स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? Ma'am, to improve the girl child education, and that dropout ratio is also there, to improve the child literacy in the below 6 to 18 year of age, ma'am. To और improve. क्या इसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास नहीं है? क्योंकि जब तक वो 18 ईयर्स की होगी तब जाकर उसको पैसा मिलेगा। अगर वो उससे पहले शादी कर लेती है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। Yes, ma'am. ये है प्रावधान, करेंगे? ये प्रावधान है मैम। आप अक्सर देखते हैं कि जो हमारे ट्राइब्स हैं, झारखंड में कितने ट्राइब्स हैं टोटल? मैम 33 ऐसे एक पुराण को ऐड किया गया है। ऑफिशियली आ गया? मतलब 33 यस मैम, ऑफिशियली 32 है ऐसे, बट 32 बोलिए। तो उसमें प्रिमिटिव कितने हैं? मैम प्रिमिटिव 8 है। 8 हैं। तो जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं उनके फूड सिक्योरिटी के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लाई है? मैम एक तो सेंट्रल का जो PM जनमन योजना है, फिर डाकिया योजना है, डाकिया फॉर PBTGs है, और एक है मैम सोभरन मांझी आदर्श ग्राम योजना है, और मुख्यमंत्री सारथी योजना भी है। अच्छा, यस मैम। सब योजनाओं का यस लाभ उन्हें मिल मैम, रहा है। मिल रहा है। आप देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में बहुत है। यस मैम, है ना? यस मैम। स्पेशली महिलाओं की Yes, बहुत ज्यादा होती है। क्या रीजन है इसका और क्या यूज होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद? मैम टू सेल देम इन a bonded labor, to make them in a bonded labor, to make them in a to bring them in a red light area, and for them it's a very उनको बहुत जगह लगा दिया जाता है। हाँ, जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया मैम, फिर सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, बैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और उनके ऑर्गन्स का भी हाँ ऑर्गन्स को भी सेल किया जाता है मैम। अच्छा, तो ये जो अगर सपोज आप CDPO बनते हैं, ठीक Yes, ना, ma'am. तो आप अपने एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए स्पेशली फॉर वुमेन्स क्या स्टेप लेंगे? मैम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैम it's a constitutional provision in Article 23 that provision of child bonded labor and child trafficking. So I'll try to implement in my block area, and apart from that I'll contact to the higher official authority, and apart from that I'll bring the awareness campaign through the Nukkad Natak, billboard in trees, or some kind of social awareness program through women who are in good in education, and debate competition in schools also मैम। मिड डे मील आज बहुत चर्चा में रहा है। जी मैम, जी मैम। क्यों? मैम हमारे जो भारत सरकार की जो प्रयास है सुबह में खाना देने का है बात, और जैसे हमारे 2 स्टेट गुजरात और कर्नाटका ने लागू किया है, तो उसे हमारे जो भारत सरकार का प्रावधान, उनका कहना है कि पूरे देश में लागू किया जाए ताकि जो उनकी ग्रॉस लर्निंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये जो सुबह में ब्रेकफास्ट देने का जो सोच है, Yes, ma'am. उसके पीछे क्या मेन रीज़न आपको लगता है? क्यों देना चाहती है गवर्नमेंट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बच्चों को? मैम जैसे मैं अगर खुद पे भी देखता हूँ तो जनरली हम लोग 8 बजे सो जाते हैं, और जो 8 से 12 6 या 7 बजे जगते हैं, तो ये 8 से 10 घंटा का अंतराल हो जाता है। इसके बीच में ना हमें प्रोटीन्स और ना एनर्जी मिलता है। तो जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है एक एनर्जी बूस्टर के मील के फॉर्म में काम करता है, ताकि वो मैम अगर वो ब्रेकफास्ट करेंगे तो जिनके कारण उन्हें शरीर में एनर्जी मिलेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे, लर्निंग एफिशिएंसी, फोकस अच्छा बढ़ेगा। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि अगर बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनकी हाँ। एफिशिएंसी बढ़ता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने की उनकी हाँ। कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी यस improve मैम, होती है। काफ़ी इम्प्रूव होती है। अच्छा, ये बताइए
कि बहुत सारे जो हमारे झारखंड में योजनाएं चल रही होती हैं, है यस ना? मैम, यस मैम। और उसके बावजूद आप देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन है, एनीमिक कंडीशन है ना? और प्रॉपर ग्रोथ जो चाइल्ड का होना चाहिए वो भी नहीं है। Yes, ma'am. तो आप इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और आपके आने पर क्या ये चेंज होगा? मैम देखिए, जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारे स्टेक होल्डर्स के हैं मैम। किसी को एक रिस्पॉन्सिबल ठहराना मैम उचित नहीं होगा। हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे ग्राम सभा है, फिर आंगनवाड़ी केंद्र है, फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर गवर्नमेंट स्कीम है, जो हमारी सरकार की जो पॉलिसी होती है वो मैम एक बहुत अच्छी सोच के साथ निर्धारित की जाती है ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो मैम किसी पे एक पे रिस्पॉन्सिबल ठहराना तो ये उचित नहीं है। और अगर मैं एज अ CDPO ऑफिसर मैम, अगर मैं ये चाहूँगा कि मैम एक तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो आंगनवाड़ी। आपको लगता है कि जैसे आप बोले हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, बट कोई रीजन तो है कि ये हो ही नहीं रहा है? मैम मैं कहूँगा लैक लस्टर एटीट्यूड ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल, दोज हु आर इन द इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स। मेन इम्प्लीमेंटेशन लेवल में एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा मैडम। बिना बिहेवियरल चेंज के हम वहाँ तक अपने चीज़ों को नहीं पहुँचा पाएंगे। और मैम एज ए CDPO ऑफिसर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी नीचे तक हो बिहेवियरल चेंज लाने का, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन करने का कोशिश करूँगा। अपने जो हमारे लेडी सुपरवाइज़र और नीचे सेविका सहायिका होंगी उनसे कोशिश करूँगा। और मैं हायर ऑफिसर से ये भी मदद करूँगा कि जो हमारी प्लानिंग हो रही है, जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं वो वन फीड एक टेलर्ड वन पीस मील अप्रोच में ना रहे मैम। वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीम्स रहे, जैसे फूड के साथ, हेल्थ के साथ और रूरल डेवलपमेंट के साथ ये मिक्स होके रहे ताकि जो एक स्कीम का लाभ नीचे तक पहुंचेगा। एक आइडियल आंगनवाड़ी क्या हो सकता है? मैम एक आइडियल आंगनवाड़ी जो अभी हमारे सक्षम आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट लाया गया है और पोषण आंगन, ये अम्ब्रेला टर्म है मैम, जिसमें कि सारे बेनिफिट और सारे स्कीम एक ही जगह पे प्राप्त हो जाए, जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, पोषण आहार, ये सब में। तो फिर और उसमें मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को भी डेवलप करने की ज़रूरत है? यस मैम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि जैसे मॉनिटरिंग हो सके, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका स्क्रीनिंग हो सके और हेल्थ चेकअप हो सके। और साथ ही साथ मैं ऐसा जगह पे लाया जाए जो PHC से, पब्लिक हेल्थ यूनिट से बहुत कम दूर पे हो, ताकि रेफरल सर्विसेज दिया जा सके। टेक होम राशन, यस मैम, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? टेक होम राशन मैम ये जो मैम अभी मुझे याद रिकॉल नहीं होता। क्यों दिया जाता है? टेक होम राशन तो घर ले जाने के लिए। यस मैम। तो आप सिंपल सोचिए ना कि अगर किसी महिला को, बच्चे को टेक होम राशन दिया जा रहा तो क्या उसका? मैम टेक होम राशन का यही कॉन्सेप्ट था कि जो हमारी मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है या जो लैक्टेटिंग मदर है, उनको वो राशन ईजिली अफोर्ड कर सके जो बाहर में ना मिल रहा हो, और ताकि वो कुक करके अपने जो बच्चे हैं उनको फीड कर सके, ये कॉन्सेप्ट के साथ। और प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये सब का कॉन्सेप्ट जो मैं इजीली एक्सेसिबल हो, ये कॉन्सेप्ट था मैम। ये बताइए, प्री स्कूलिंग यस मैम, आंगनबाड़ी का एक वर्क है। आप प्री स्कूलिंग को कैसे बहुत बेस्ट करेंगे कि बच्चे का जो एजुकेशन है, बेस कहिए, वो बहुत अच्छा हो, उसका हर तरीके से, हर एंगल से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, प्री एजुकेशन उसको बहुत सपोर्ट करे, कैसा हो? मैम मैं अक्सर ये देखा हूँ, मैं अपने छोटे जो मेरे घर में बच्चे भी हैं, मैं ये देखा हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो थ्रू लर्निंग पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो पेंटिंग के माध्यम से, मॉनिटर फोटो के माध्यम से, और मैम
छोटे छोटे जो थोड़ा स्किट्स हो, ड्रामा हो, और एक मैम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कभी कभी मैम आउटडोर प्ले भी हो, थोड़ा स्पोर्ट्स के माध्यम से भी सीखे, क्योंकि मैम जो स्पोर्ट्स होता है एक बहुत इंस्टेंटेनियस लर्निंग का ये होता है, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी सीखें। और मैम कुछ क्राफ्ट क्रिएटिव क्राफ्ट में मैम जैसे वैदिक मैथमेटिक्स हो गया, थ्रू रूबिक्स के थ्रू, और वो जो एक अलजेब्रा जो बचपन में आता था बनाने के लिए, उसके थ्रू मैम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज का डिजिटल टाइम है जी। और जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 14 इयर्स के बच्चे, बहुत एडिक्शन है उनका इसकी ओर। इसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो जो नेगेटिविटी आज के डेट में आ गया है डिजिटल के थ्रू बच्चों में, उसको कैसे आप रोकेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेंटल ग्रोथ को वो रोक रहा है। तो उसके पक्ष में आप हैं कि मेंटल ग्रोथ को कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वो बैन किए हैं 16 इयर्स के बच्चों को ज़्यादा इस चीज़ पे। तो आपका यहाँ पर क्या सोच है, इंडिया में क्या होना चाहिए? मैम जो हमारे जो 3 से 16 इयर्स के बच्चे होते हैं मैम, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा होता है। तो इस अनुसार मैम जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होता है वो पेरेंट्स का होता है। और जो पेरेंट्स का होता है मैम, वो उनकी देखभाल करें, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। पेरेंटल कंट्रोल होता है हमारे मोबाइल्स में, वो लगाएं। और मैं जैसे कोई बच्चे जो जैसे आजकल गेम्स के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, तो मैम बातचीत करें, कम्युनिकेशंस करें, उन्हें बताएं कि ये कितना अभी हानिकारक है हमारे ब्रेन और आइज़ के लिए, इसका रेडिएशंस का कितना हानिकारक है। उनको समय समय पे बाहर ले जा सकते हैं, जैसे जो आउटडोर गेम्स होता है उनके प्रति प्रोत्साहन कर सकते हैं थ्रू मतलब बेटर लर्निंग, जैसे योगा हो गया, कराटे हो गया, क्रिकेट हो गया, ऑप्शन देना होगा। हाँ मैम, बच्चों को ऑप्शन देना होगा ताकि वो इनके पीछे एडिक्टेड ना रहे। और मैम सबसे ज़्यादा मैं जिम्मेदार मानूंगा मैम पेरेंट्स का, फिर टीचर्स का स्कूल में, क्योंकि बच्चे जो कभी कभार जो स्कूल में भी लेके मोबाइल चले जाते हैं, तो हमारे जो टीचर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अच्छा, स्क्रीन टाइम कम से कम। हाँ मैम, स्क्रीन टाइम कम से कम। अच्छा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है इंडिया में 0 से लेकर आप 50+ महिलाओं तक को दिया जाता है। तो आप मेन वैक्सीन के नाम बताइए जो जनरली छोटे बच्चों को दिया जाता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है। मैम जैसे छोटे बच्चे को दिया जाता है BCG, फिर टेटनस का हो गया, पोलियो का हो गया, और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए होता है वो DPT होता है, डिप्थेरिया, पेट्रस एंड टेटनस। फिर मैम मीजल्स का जो बच्चों को होता है, और मैम उनको हेपेटाइटिस का भी दिया जाता है, T हेपेटाइटिस भी ये होता है मैम। अच्छा, और 50+ महिलाओं को मैम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, मातृवंदन योजना क्या है? मैम ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है, जहाँ पे जो बच्चों जो हमारी माताएं उनको 5,000 देना, पहले बच्चों को, और दूसरे बच्चों को 6,000 देना। कब देंगे, किस कंडीशन में देंगे दूसरे बच्चे में 6,000? बॉय अगर हो गया, मान ले लड़का हो गया तो देंगे। फर्स्ट 2 गर्ल चाइल्ड है ना, गर्ल चाइल्ड के लिए देंगे। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो फिर वो हम देंगे। ये बताइए, झारखंड का जो गठन है, अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं। ये 25 सालों में आपको महिला और बच्चों के संबंध में क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? महिलाएं और बच्चे के संबंध, हाँ, क्या डेवलपमेंट दिखता है आपको? मैम जो हमारी महिलाएं हैं वो पहले बेसिकली हाउस होल्ड कोर्स करती थी, अब वो शिक्षा के तौर पे जा रही हैं, नए इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रही हैं, नए एजुकेशंस वो उनको मिल रहा है। हमारी जो अभी रांची में एक CA जो साक्षी जैन है, उनका UN उनका नाम
एक बहुत इंटरनेशनल मैगजीन में नाम आया है मैम। और जो हमारे ट्राइबल जो वीमेन है वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे रह रही है, पहले ये नहीं था। जैसे नीलिमा करकेट्टा हो गई, निक्की लकड़ा हो गई, निक्की प्रधान हो गई सॉरी, और बॉक्सिंग में भी बहुत आगे है मैम। स्पोर्ट्स में चुनिंदा महिलाएं हैं, पर एवरेज महिलाओं का क्या ग्रोथ है मैम? जो हमारी महिलाएं हैं वो टीचिंग जॉब में हैं, हमारे जो उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, और मैम लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तीसरा है मैम कि वो लोग स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू कर रही हैं। और मैम चौथा जो है, जो कुछ वीमेन हैं वो सखी मंडल बनाकर जैसे वो भी इम्पार्ट कर रही हैं नॉलेज को। और जो हमारे बच्चे हैं, जैसे बच्चों का भी विकास हुआ है मैम। अभी बच्चों में जो पहले हमारा जो स्टंटिंग रेट था वो कम हुआ है, जैसे अभी झारखंड में 39% है, ओबेसिटी भी कम हुआ है, और वेस्टिंग भी मैम कम हुआ है। तो ये सब भी देखा जा रहा है। अंडर नरिशमेंट जैसे समर प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट का, वो इनिशिएटिव लाया जा रहा है। सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है मैम। तो ये सब कह सकते हैं कि 25 साल में झारखंड में बहुत प्रगति हुआ है महिला और भी बच्चों में। ठीक है सर, थैंक यू। पलामू डिस्ट्रिक्ट से आप है ना निखिल जी? यस सर। वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना है लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट का? सर 90 लाख के आसपास। अर्बन पॉपुलेशन? सर नो आइडिया। 8%। इतना कम क्यों है अर्बनाइजेशन? क्या लगता है आपको? Sir, Naxalism was the issues earlier in the Palamu. Naxalism was there, sir, and Palamu was mainly a rain-fed area, sir. Agriculture issues is also there, and thirdly, sir, industrial development. Industrial development comes. Thank you. आपने आज पेपर में देखा होगा कि फीमेल वर्किंग हॉस्टल्स के कुछ स्थापना होनी है झारखंड में। किन किन स्थानों पर होने, कहाँ पर होना है फीमेल वर्किंग हॉस्टल्स? सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो। ठीक है, 500 वहाँ पर बेड्स रहेंगे हॉस्टल्स में। इसका जो टारगेट किया गया है इंडस्ट्रियल रीजन में किया गया है, जिससे जमशेदपुर के आदित्यपुर में किया गया है, और हजारीबाग का बरही में, यहाँ टाटा सिल्वे में किया गया है, आपका रांची में है ना, बोकारो में बालीडीह में किया गया है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रीजन है उन्हीं क्षेत्रों में किया गया है। इसका क्या रीजन लग रहा है, और वर्किंग हॉस्टल्स का क्या लाभ मिलता है वर्किंग फीमेल्स को, वुमेन को? सर पहला तो है कि सेफ्टी कंडीशन है सर, वीमेन को मतलब एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना। दूसरा है सर कि अगर इंडस्ट्रीज़ के बगल में रहेंगे तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना सुविधा वो आसान हो जाएगा। तीसरा सर मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं सर वो बेटर उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव होगा सर, कि अगर दूर से आएंगे जाएंगे जिनके कारण उन्हें शायद सर प्रॉब्लम हो, तो वो नज़दीक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नज़दीक रहेंगी तो हो सकता है कि सर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे सर आपस में हो सकता है वो मिलेंगी, या तो उसके कारण एक यूनियन भी डेवलप हो सकता है, या सर फ्यूचर में कुछ जैसे छोटे मोटे समूह भी बना सकती हैं वो लोग। इंडस्ट्री का लाभ, इंडस्ट्री को कुछ लाभ? ये सर इंडस्ट्री को है कि सर टाइम पे जो वर्कर्स है वो अवेलेबल होंगे। दूसरा है सर कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर सकती हैं, और तीसरा है सर कि ट्रांसपोर्टेशन में भी उनको कॉस्ट बचेगा। नाइट शिफ्ट में मिला है इजाज़त? यस सर, अनुमति मिली है झारखंड सरकार? यस सर। कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके आधार पर अनुमति मिली? सारे कंडीशंस को बताइए सर। पहले तो है कि सेफ्टी, एक कमेटी बनाना है,
और कैमरा, ये डिजिटल हमें कैमरा का प्रयोग करना है। वर्किंग प्लेस, हाँ CCTV, और वर्किंग प्लेस में एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो, वो देख रेख करे, निगरानी में रहे, और टू इम्प्रूव द सर बेसिकली कंडीशन ऑफ कुछ फीमेल्स वहाँ पर होम वर्कर्स हैं। यस सर, ट्रांसपोर्टेशन हाँ सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, और उनका सर ये टॉयलेट फैसिलिटी एंड हाइजीन होने चाहिए। वेरी गुड। जी राम जी लॉन्च हुआ है जी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जितने भी प्रोविजंस नए जोड़े गए हैं, इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे महिलाओं को स्पेशली? सर पहला तो सर जो वाटर सिक्योरिटी वाला है, या जैसे जो हमारी महिलाएं हैं डोभा में काम कर सकती हैं, इसके थ्रू जो हमारे झारखंड सरकार का ये है, तो डोभा में ये काम करेंगे। और सर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल है, जैसे रोड्स और ये सब में, जैसे उसमें महिलाएं अपना उनको रोज़गार मिलेगा सर 125 डेज़ के लिए। और सर जैसे हमारी जैसे बागवानी हो गया, तो बागवानी में भी इसमें हेल्प मिलेगा हमारी महिलाओं को। और चौथा है सर, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है वीमेन का सर, ताकि जो कोई महिला पीछे ना रह जाए। कुछ ऐसे प्रोविजंस बताइए खास करके फीमेल्स के लिए जी राम जी में। सर जैसे 1/3 अनिवार्य है, वीमेन अनिवार्य। और एक जो किया गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हैं तो वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप से, पंचायत के माध्यम से जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, उस 33% में भी। थैंक यू सर। इस ANM और आशा का फुल फॉर्म बताइए। सर ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ केयर वर्कर, एक्टिविस्ट। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि चमरा लिंडा के नेतृत्व में असम एक टीम जाने वाली है झारखंड गवर्नमेंट की। इसका क्या पर्पस है, क्यों टीम जा रही है वहाँ? सर आइडिया नहीं है मुझे, पढ़ूंगा इस पे सर। वहाँ पर हिंसा वगैरह हो रहा है जिससे SC/ST की क्या सिचुएशन है, अच्छा सर, उसको देखने के लिए उसको स्टडी करेगी और झारखंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। थैंक यू। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को काम करने पर प्रोहिबिशन किया गया है? सर 14 साल के बच्चों तक। 14 साल के बच्चों तक सर। और एडोलेसेंट जो है 14 से 18 साल, उसमें हजार्डस माइंस और ये सब में काम नहीं कर सकते। क्या यह एक आपको लगता है कि बाल श्रम चाइल्ड लेबर को रोकने में सफल रहा है? यस सर, रुक चुका है चाइल्ड। सर ये एक्चुअली रुका ऐसे, मतलब ऐसे इंग्लिश में बोलिए सर। टिल नाउ सर इट हैज़ नॉट बीन एबल टू stop it, but we can control the some child labor act through this provision, through the better implementation sir, in the through the coordination of center and state as well. जब हमारे पास एक्ट है तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पाते हैं हमारे ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव्स? सर कुछ सॉफ्टनेस दिखाया जाता है किसी कारण से? सर I would say that sir, because of some lacklustre attitude sir, and because of sir no motivation towards the downtrodden sir, empathetic sir, we have to be sensitive and empathetic towards the vulnerable groups like tribes and women sir. So I think sir there is some lacklustre in that sir. ये बताइए कि आप मेल कैंडिडेट हैं CDPO के लिए? यस सर। और वहाँ पर फीमेल्स और चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स को डील करना होगा।
क्या अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस पोस्ट पर रहते हुए? Yes, sir. Sir, because in the changing scenario, man, and changing scenario in digital era, even men is also sensitive towards the women issues, child issues, ma'am. Yes, sir. And apart from that, we have seen that we have the provision of paternity leave. If father would have not been a sensible, then why there is provision of paternity leave, ma'am? Sir, so there is a provision of paternity leave, and sir, I would say that, sir, this is the administrative post, sir, and men is also better at taking care of responsibility of women, sir. And we should not segregate this post as a black and white. तो कोई भी अगर प्रेग्नेंट महिला है, अगर उनको खान पान के संदर्भ में समझाना है, अन्य क्या क्या केयर रखना है एएनसी एंड पीएनसी में, तो इस संदर्भ में अगर आपको समझाना होगा, वो आती हैं बहुत सारी गर्भवती महिलाएं, तो किस प्रकार से आप समझा पाएंगे जिसमें बहुत सारी बातें महिलाओं को भी लगता है कि नहीं उनको गोपनीय रखना है, मेल्स के समक्ष वो बहुत सारी समस्याएं नहीं बोल पाती हैं, तो कैसे आपका उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? Sir, first of all, I would like to talk with her if she is not comfortable with me telling about the problem she is facing. So I'll request a lady supervisor or who is below my post. I'll ask her to communicate her properly and take as soon as possible actions so that she can get a proper take care from our side, government side. बिलो माय पोस्ट मतलब बोली सबऑर्डिनेट में। सबऑर्डिनेट। ये बताइए कि अभी ठंड का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें? Sir, if being as a officer, sir, I would advise in my block or district, I would advise her to as possible as they can stay inside the home. छोटे बच्चे, infants. So, sir, I would request families and mother to take care of her child as much as possible. And sir, I would request all the Sevika and Sahaya so that they can see if any mother who is not having proper facilities of home or anything like that, I'll try to bring some woolen cloth from our district fund. नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एडवाइस करना है। क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चा जो है स्वस्थ रहे अत्यधिक टेम्परेचर के? सर, केवल एडवाइस बताइए। सर, I would say that do some local remedies like burning goita and all, cow dung cakes, and second, sir, giving hot milk and water to the infant, sir, and if she can do some like kangaroo mother, she can contact with her body so that they will not get cold, sir. गरम कपड़े पहनना, हाँ, गरम के कंगारू मदर केयर, सर। जो लैक्टिंग मदर है उनको हॉट मील लेना है। यस मैम। हमेशा गर्म वाटर प्रिवेंट करना है, और उसका जो घर है उसको भी लोकल रेमेडीज के थ्रू हाइजेनिक रखना है। हाँ, हाइजेनिक रखना है। और ठंड में ये नहीं कि बच्चे को नहाना नहीं, वो सब भी करना है, नीट एंड क्लीन रहना है, खुद का भी बच्चे को भी। यस मैम। वैसे बचाना है, वैक्सीनेशन। और गर्म जब धूप निकले तो धूप भी सेकना है। थैंक यू मैम। यस मैम। गोइठा वाला सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। हाँ। कुछ और दे दीजिएगा उसके जगह। सन वाला अच्छा है। हाँ, सन वाला ठीक है, नेचुरल। हाँ, 2 घंटे का धूप ढक करके रखना रजाई जैसे, वो ठीक है, गोइठा वाला नहीं।
गरम कपड़े, गरम दूध, मतलब हर चीज गरम खाना, हाँ, ताज़ा खाना इसमें। ऐसे फूड प्रोडक्ट भी यूज करना है जो ठंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जैसे आंवला वगैरह है। मैम एक जो वो वाटर का एक जो गर्म वाला आजकल आया है, जो बॉडी के पास रखने से वो दे सकते हैं। कुछ भी अनहाइजेनिक और अननेचुरल नहीं होना चाहिए, और केमिकल वाला नहीं, केमिकल या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। फैक्ट्री एक्ट कब आया? फैक्ट्री एक्ट 1948। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर जरूरी होते हैं, कितने वर्कर्स किस सिचुएशन में? मिनिमम कितने वर्कर्स अगर होंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स एक जरूरी है? मैं गेस करना चाहिए 120 115। कैंटीन कितने वर्कर्स के लिए है? सर 200 250 क्रेच 50 30। इसको थोड़ा देख लीजिएगा सर। अच्छा, न्यू इम्प्लीमेंटेशन सर। हाँ, हर 30 वुमेन अगर वहाँ पर वर्क कर रही हैं तो क्रेच जो है, क्रेच फैसिलिटी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा जरूरी नहीं है। थैंक यू सर। आज आप कहीं पर भी CDPO के पोस्ट पर हैं और किसी खास प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी में, किसी खास आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन के प्रति नेगेटिविटी फैली हुई है। ट्राइबल इलाका है या कोई भी इलाका है, वैक्सीनेशन के प्रति नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं और आप पर सरकार का भी प्रेशर है और आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैक्सीनेशन बच्चों को मिलना चाहिए। तो किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I will talk to the people who are there and I will tell them that this is a very good initiative from our government side and not to forbid this thing. And sir, secondly, I will try to persuade the family members कि how important the vaccination is. And sir, third I will talk to my staffs so that they can persuade the family. And sir, if the family is still resisting that, so sir, in the tribal area Samans is there sir, traditional doctor is there. I'll persuade the traditional doctor in through the Pahans, Mundas or anywhere in the local level, so that the how vaccination is very important for the women or a child sir. Traditional doctors, sir, it was happened in during a COVID time in Odisha sir, when the people from a tribal area was resisting that thing, taking vaccination. So the Samans and tribal जो doctor are there in the present there, so they persuaded and they have taken the vaccination. Okay. मान लीजिए कि आप वैक्सीनेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ट्राइबल इलाके में बहुत सारे ओझागुनी किस्म के लोग होते हैं। जी। उनको लगता है कि अगर वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो गई हमारे गांव में तो बहुत सारे उनके जो रोजगार हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। उनके पास फिर बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे और उनके द्वारा आप इधर प्रयास कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के लिए मान जाएं और उनके द्वारा उधर डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपकी टीम वापस आ रही, उन लोग अलग माहौल फिर बना दे रहे हैं। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप? Sir, first of all, I will talk to the community level at a very ground level sir, कि what the vaccination means is, what the importance of vaccination is, and I will persuade them not to be indulged in a superstition like Ojha and Guni sir. And I will ask the community of Ojha also not to interfere in the matter of public service, because there can be a strict action against them hampering the situation of this thing. And sir, fourthly sir, I will try to drive the campaign in the near area, so our hospital representative, ANM, midwives, sahiyas, so that they can transfer the
message very properly and effectively. आप एक इंजीनियर हैं, Yes sir. सीडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं? वहाँ भी तो आपके ठीक ठाक ऑप्शंस थे, देश की सेवा कर सकते थे, फिर सीडीपीओ में क्यों बनना चाहते हैं? Sir, being as an engineer, sir, we have been imparted with, sir, analytical ability, and sir, I am analytical so that I can work in a very ground level problem of the situations. And secondly, sir, we have been taught of education, so for technological education, sir, so that we can in the ground public services there is a dearth of data, sir, so we can implement the technology there, sir. And sir, I believe in team spirit, sir, so in engineering we have been taught of team spirits, so I can use this in public services. और सीडीपीओ बनना क्यों चाहते हैं? और कुछ रीजन? Sir, I am. तो आप यूज करेंगे, चलिए। Sir, I am sensitive and empathetic towards the vulnerable section when I was preparing for the civil service. चेस आपकी हॉबी है? Yes, sir. कहाँ तक हॉबी है? मीन्स कुछ Yes, sir, मैं ऑनलाइन lessons खेलता वगैरह हो ऑनलाइन तक? और मैं कॉलेज लेवल पे कॉलेज लेवल तक। वहाँ पर जैसे किंग, क्वीन एंड पॉन, Yes, sir. इनका क्या यूज करेंगे? इनका जो रोल होता है चेस बोर्ड पर, Yes, sir. सीडीपीओ के रूप में इनका क्या, वहाँ से जो भी आप सीखे, आप में sir. क्वालिटीज डेवलप हुए, सीडीपीओ के रूप में इन तीनों का क्या आप यूज कर सकते हैं? किंग, क्वीन, क्वीन एंड पॉन। पॉन. Sir, sir, king is the ultimate ruler of the chessboard, and queen helps the king, and the pawn are the chariots, sir, of the chessboard. Sir, in the similar situation, I would see this as the scheme of the government, who is the king of the day. Our government from center and state level also, I'll try to implement. We are the chariot, sir. We are the implementing officer. We are act like a pawn, sir. We have to implement so that the our dreams of king should be fulfilled in the ground level. पॉन का बताए? Pawn, sir, chariot. Yes, sir. We are the pawn of this system. आप तो चलिए किंग है मान लेते हैं। उसके बाद बताइए। सर, किंग की तरह आप गवर्नमेंट, किंग की तरह आपका रोल है सीडीपीओ की तरह। यस सर। किसका ज्यादा पावरफुल रोल लगता है वहां पर, किंग या क्वीन का? पहले उससे बताइए। चेस में सर क्वीन का पावरफुल रोल होता है। क्वीन का पावरफुल। और पॉन जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड वर्कर होते हैं। यस सर। तो आपके भी बहुत सारे वर्कर रहे। क्वीन, यस सर। हाँ, और चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे राजा की भी सेना हो, तो उनका कितना बड़ा रोल होता है तो देखते हैं। चेस में भी इनका कितना बड़ा रोल होता है देखते हैं। तो जितने भी आपके वर्कर्स हैं ग्राउंड लेवल के, वो निश्चित रूप से पॉन के रूप में होंगे। और चूंकि आप महिला के लिए वर्क कर रहे हैं, तो क्वीन महिला, हाँ, क्वीन की तरह वो होंगी जिनको सशक्त बनाना है। जिस तरीके के चेस की महिला क्वीन जो होती हैं, वो राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लेते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनका सुरक्षा का पूरा दायित्व क्वीन पर होता है। उसी तरीके से हमारे सोसाइटी के सुरक्षा का दायित्व महिलाओं पर ही है। अगर उनको सशक्त बना दिया जाए, पॉन के रूप में आपके सारे वर्कर्स वहाँ पर फंक्शन करेंगे। इससे जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उनमें सेविका और सहायिका का बहुत बड़ा रोल होगा। थैंक यू सर। झारखंड का टोटल कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने हैं टोटल? सर 81 है। नॉमिनेटेड?
सर 1 है। कन्फर्म है? नो सर, अभी है नॉमिनेटेड? सर आई हैव नो आइडिया सर। समाप्त हो गए? समाप्त अब नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं है ना, इस संसद में है। एंग्लो इंडियंस से हटा दिया गया। जरूरत अब नहीं लग रहा। उसमें जो 81 है उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने आरक्षित हैं? सर 28 है। और शेड्यूल कास्ट के लिए? 9 है सर, 37 टोटल होता है। 9 है। पीवीटीजी की संख्या झारखंड में 3.5% है सर, 3.5 परसेंटेज है उनके नंबर्स पीवीटीजी टाइप्स के। सर टोटल 32 है ना, उसमें पीवीटीजी कितने हैं? सर 8 है। 8 है? यस सर। कुछ का नाम बता सकते हैं? यस सर, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, कोरवा, सवर, असुर, बिरहोर एंड। ठीक, ये बताइए कि हाल आज ही पेपर में आया है कि रांची जो है सबसे असुरक्षित शहर है झारखंड का, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से। यस सर। आखिर इसका क्या कारण है कि रांची जैसा जो कैपिटल सिटी है झारखंड का, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? क्या क्या रीजंस लगते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर illegal crimes against women sir. Secondly is trafficking sir against women. Thirdly sir, the use of drugs in a rape parties, and fourthly sir, sex trafficking is also there in some of the areas, like recently we have seen in the Lalpur areas. आखिर वो सब क्यों है? चिंता ही बहुत ज्यादा। सारा चीज क्यों? क्या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ रोल है इसमें? Sir, I would say that negligence of night in the traffics, negligence of law and order situation sometimes in this is the issues. And secondly sir, we have to be a proper vigilance during the night time and daytime also, and proper CCTV cameras should be there in all the nooks and corner of the Ranchi sir. And we have to take the strict action against the those who are violating the crime, especially against the sir women. And fifth sir, and at the last sir, I would say that we are not very effectively implementing the POSCO Act. That's why this is the reason, I would say sir. झारखंड में जनजातीय महिलाएं जो हैं, Yes sir. उनकी स्पेसिफिक क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं? Sir, first is the child marriage is there sir. We have seen in the Sahebganj and Pakur, 2 out of 1 women is married. Child marriage is the big issue. Secondly is Dayan Pratha, which and thirdly sir is child marriage. और कुछ समस्या जैसे जनजातियों का लोग कहाँ रहते हैं, geographical isolation is there sir. इकोनॉमिकल दृष्टि से सोचिए, सोशल दृष्टि से कुछ बताया आपने? नशा वगैरह, नशा पान। सोशल में कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, नशा वाला हुआ, एडुकेशन वाला हुआ। सर एक्चुअली कुछ पॉजिटिवनेस बताइए जनजातीय फीमेल्स का, जनरल फीमेल्स के अपेक्षा, नॉन ट्राइबल फीमेल्स के अपेक्षा कुछ ऐसा पॉजिटिव बताइए जिससे सीखना चाहिए। सर फर्स्टली I would say that they are very attracted towards their tribal culture, like they celebrate Karma, Sohrai, and we have seen in the Ranchi also sir, Karam festival,
So we should learn this thing. कि protecting the nature is a very good thing. And secondly, क्वेश्चन को और स्पष्ट कर देते हैं। ट्राइबल सोसाइटी जो है वहाँ पर जो फीमेल्स की सिचुएशन है, बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटी एक है, दूसरा नॉन ट्राइबल सोसाइटी है, उनमें फीमेल्स के कंडीशन में वहाँ पर क्या आपको पॉजिटिवनेस? yes sir, sex ratio is there. Sex ratio और कुछ है उसको भी बताइए। मैट्रिलिनियर सोसाइटी है सर, महिला प्रधान है। महिला प्रधान तो नहीं है, लेकिन महिलाओं को सम्मान, सब महिलाओं का सम्मान है। एंड डाउरी सिस्टम नहीं, डाउरी सिस्टम नहीं है मैम, डाउरी सिस्टम नहीं। थैंक यू मैम। डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम, सेक्स रेशियो अच्छा है और महिलाओं के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। और वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्राइबल स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स में एक्टिव है। इकोनॉमिकली हाट बाजार बहुत अच्छा मेंटेन करती हैं। थैंक यू मैम। THR एंड HCM में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर? THR एंड HCM डिफरेंस? हॉट कुक्ड मील, हाँ, टेक होम राशन एंड हॉट कुक्ड, टेक होम राशन एंड हॉट कुक्ड मील सर। डिफरेंस? Sir, in the take-home ration, we supposed to take ration from one place to another and then cook it. And in the hot cooked meal, we have to provide the hot cooked meal to the pregnant and lactating women. THR होते हुए HCM की क्यों जरूरत पड़ी? Because sir, we have witnessed that we have to. Hot cooked meal we have to give them instantaneously there also sir, so that no women can left behind from anemia and malnutrition sir. And giving take home ration, we are not accountable that what she is doing with the take home ration sir, so we have no proper data of that. क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है गवर्नमेंट जो HCM को शुरू किया गया THR पर? क्या लगता है गवर्नमेंट को? Sir, because I think that despite giving this take-home ration, sir, our malnutrition, anemic, and sex ratio has not improved till now. So they are properly utilizing this. Instead of giving ration, they are investing in hot cooked meal, sir. ऐसा कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मालन्यूट्रिशन कहीं पर प्रॉब्लम है आपके प्रोजेक्ट के किसी खास क्षेत्र में, आंगनवाड़ियों में, तो वहाँ पर THR की जगह HCM को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे ताकि आपके पूरे अंडर कंट्रोल में आ जाए। THR की जगह हम HCM को ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे। यस सर, हॉट कुक मिल को ज़्यादा कुछ लाभ हो सकता है ना? यस सर, प्रॉपर वे में सब कंज्यूम करें। यस सर, प्रॉपर वे में कंज्यूम करेंगे, संज्ञान में रहेगा कि हाँ कंज्यूम हुआ है। यस सर, फिर इधर उधर नहीं। यस सर, रिपोर्ट जागरूकता है, शिक्षा है, तो थोड़ा सा समस्या THR के साथ हो जाता होगा। ये बताइए ICDS की शुरुआत कब हुई थी भारत में? सर 1975 2 अक्टूबर। उसके 6 इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं सारे का नाम बताइए। सर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्यों कहा जाता है? सिर्फ न्यूट्रिशन क्यों नहीं वर्ड को यूज किए? Sir, because in the modern time, sir, we are consuming a diet with a very less vitamins and proteins. So we have to give a supplement like iron, folic acid, and like vitamin D, vitamin A, and sir, different supplements, so that they can add in their overall development. यानी कि सप्लीमेंट्री शब्द क्यों यहाँ पर जोड़ा गया? क्या रीजन है? डायरेक्ट कुछ बताइए। ये तो ठीक है, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं हम लोग, जो इस शब्द का प्रयोग स्पेशली क्यों किए हम लोग?
so that we don't get energy or calorie from. क्योंकि कंप्लीट खाना कंप्लीट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है सर। भोजन हम मेन लोग कोर्स कंप्लीट का पार्ट नहीं है। मेन कोर्स सरकार के लिए उतना संभव भी नहीं, इतने सारे लोगों को 3 टाइम बैठा कोई मतलब भी नहीं है ना। उनको फिट रखना है, जो कमी रह गई है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाना। आपको क्या लगता है कि एक CDPO के रूप में जो भी सरकार प्रयास कर रही है, जितने भी 6 कंपोनेंट्स आपने बताए, उसके अलावा दैनिक जीवन में आप क्या क्या ऐसे एडवाइस करेंगे कि आसपास से उन लोग गेन कर सके न्यूट्रिशन को, जिससे सरकार पर कुछ बर्डन कम हो? केवल आपके एडवाइस से क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के लोगों को? Sir, first I will try to understand the situation of that problem. प्रॉब्लम तो मैंने कुछ नहीं है, मतलब हाँ सर, मतलब आप दे ही रहे हैं जो भी DHR वगैरह जो सर, वैक्सीनेशन, उसके बावजूद आप कैसा अपने हर दिन के दैनिक जीवन में sir, I will try to add the local food from there, like futka and like mushroom and sir, to have a balanced diet, and saag is there in our Jharkhand area, and we have sir in Palamu dalhan is dalhan is there, and sir in terms of sir non-veg also, like egg, protein rich food sir, and ragi laddu is there sir, and I'll try to convey the message through the women sir. पानी देख पीना, हाँ पानी देखना, स्वच्छ हाइजीन, बहुत कुछ कर सकते हैं। यस सर, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। हाइजीन एंड वाटर को जरूर जोड़िएगा जब भी माल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना हो, तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है मैम। VHND का फुल फॉर्म बताइए। VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, आपको प्रोजेक्ट में जब जाएंगे तो मनाया जाएगा। MUAC का फुल फॉर्म बताइए। MUAC सर, आई एम नॉट SAM, यस सर, से सीवियर एक्यूट malnutrition, तो समझते हैं। यस सर, सीवियर एक्यूट मॉडरेट एक्यूट malnutrition। तो कैसे काउंट होता है? MUAC से ना? यस सर, वो आर्म 11.5 से कम रहता है, आएगा तो क्या होगा? SAM या MAM? सर सीवियर होगा, फिर SAM हो जाएगा। SAM। और MAM के लिए क्या है? सर 11.5 से 12.5, मोर देन 12.5 सेंटीमीटर सर मैल न्यूट्रिशन नॉर्मल रहता है सर। हाँ, मोर देन 12.5 सेंटीमीटर नॉर्मल है सर। 11.5 से 12.5 मैम सर, मॉडरेट सैम सर। सर उसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, मैं आजा मैडम, नोट्स में दिया। यस सर, यस सर, सारा दिया हुआ। ठीक है, जा सकते हैं, निकलिए।